Hello guys, welcome to the next video, Basics of Cache Mapping. So अभी मैंने आपको बताया था in the previous video what is the cache mapping, to transfer the data from the main memory to cache memory, but the data is transferred into the blocks form, and to which line of the cache memory the data is brought. It is all about cache mapping technique. So cache mapping technique will decide ki to which line the block will be transferred to the cache memory. Okay, so there are the three techniques for cache mapping. One is the direct mapping, another one is the set associative, and third one is the associative. So they are the three techniques here, but the basic of the cache mapping is very important for these three techniques. If you know the basics, then you can easily know what is inside these techniques. Okay, so let's understand it. See, this is your main memory and this is your cache memory. Main memory is divided into the equal partitions and each partition is called block. Okay, same as cache memory is divided into the equal partition and each partition is called line. The size of the line is equal to the size of the block. So आप अपने नोट्स मुझे लगता है अच्छे से बना रहे होंगे. सो जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ वो आप अच्छे से नोट करते चली जाइए, बिकॉज नाउ दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम. I already told you that nothing relevant I am going to miss and nothing irrelevant I am going to include in my videos. So now it is the beginning of the real gate. Okay, so size of the line is equal to the size of the block. If the block size is equal to 4 words and capacity of the main memory is 64 words, then how many blocks in the main memory? कि वेरी सिंपल है. मेन मेमोरी का जो साइज है वो है 64 वर्ड्स और एक ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड्स. तो कितने ब्लॉक्स होंगे मेन मेमोरी में? मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे 64 डिवाइड बाई में 4 इज इक्वल टू 16 ब्लॉक्स. कितने ब्लॉक्स होंगे? 16 ब्लॉक्स. सो what will be the formula for number of blocks in main memory? Capacity of the main memory and the size of the block. आप इनको नोट कर लीजिए. साइज ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज द साइज ऑफ द मेन मेमोरी. If the capacity of the cache memory is 16 words, then how many lines in the cache memory? It will be 16 divided by 4, that is the 4 lines. So what is the formula? Size of cache is divided by the size of block, and we will get the number of the blocks in the main memory and number of lines in the cache line. Understood? Now when we transfer the block from the cache from the main memory to cache memory, then we transfer the entire block and put it in the lines. In any line we can put. It depends on the technique. ये direct technique है, set associative है या only associative है. Okay, so we have divided the entire main memory into the blocks. In each block we have words. There are the 4 words, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this. So we have total 64 words from 0 to 63. Okay, each block has 4 words. Now let's see here. The capacity of the main memory is 64 words. So let's suppose the memory is word addressable, then 64 into 1 word. So size of the each cell is 1 word, and how many cells are there? 64 cells are there. So what will be the size? So what will be the address space? 6 bits. So if CPU generates the address of a word, then it will be of 6 bits. Let's suppose it is 0, 1, 1, 1 and 1, 0. So it is the word's address. So it is which word?
क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये कौन सा वर्ड है? देखिए हम यहाँ पर देखते हैं. सो इट इज़ 1 सेकेंड, ये रहा. इट इज़ 0 1 1 और इसका 1 0 वर्ड है, तो 0 0 0 1 1 0 and 1 1. This is the word. And what is the word number? 16. It will be 20, then 24, then 28, 29, and this is 30. So this is the word number 30. Okay, this is the word number 30. वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हैं? 0 to 63. जो वर्ड्स के नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट है? 0 to 63. उनमें से एक वर्ड है जिसका एड्रेस है 30. सो दिस इज़ द 31st वर्ड. अभी आपको समझ आ रहा है कौन सा वर्ड CPU एक्सेस करना चाहता है? CPU मेन मेमोरी का 31st वर्ड एक्सेस करना चाहता है. ओके, सो यहाँ पे अभी देखिए आप इसको बाइनरी है तो इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको? दिस इज़ द बाइनरी. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 31 ही आएगा. लेट्स सपोज दिस इज़ योर 7 4 विच इज़ इक्वल टू 28 एंड दिस इज़ 2, तो दिस इज़ प्लस कर दीजिए 30. सो 30 वर्ड. तो W30 मीन्स जिसका सबस्क्रिप्ट कितना हो? 30 हो, 0 to 63 के बीच में. देखिए फिजिकली इट इज़ एन एरे. अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो दीज आर द ब्लॉक्स, बट फिजिकली इट इज़ एन एरे ऑफ द वर्ड्स. और एरे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं जो 63 तक जारी है, तो टोटल 64 वर्ड्स होंगे. तो जिसमें हम एक वर्ड एक्सेस करना चाहते हैं CPU W30 जिसका सबस्क्रिप्ट 30 है. अदरवाइज वैसे ये आपका 31st वर्ड है. ओके, सो मैंने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है अभी आपको बता रही हूँ. तो एक देखिए एक वर्ड था. जब हम वर्ड के एड्रेस को देखते हैं तो दिस इज़ लाइक दिस. अगर हम एक वर्ड के एड्रेस को देखें, बट जब हम इसको ब्लॉक के नज़रिए से देखें, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक का जो साइज है वो कितना है? 4 वर्ड्स. ब्लॉक का साइज कितना है? 4 वर्ड्स. सो दैट इज़ 2 की पावर 2 वर्ड्स. सो एड्रेस स्पेस कितना होगा वर्ड्स के लिए? 2 बिट्स. तो दीज 2 बिट्स डिनोट्स द ब्लॉक साइज, कि ब्लॉक का साइज क्या है. ठीक है. एंड रेस्ट 4 बिट्स रिप्रेजेंट द ब्लॉक एड्रेस. ये रिप्रेजेंट करती हैं क्या? ब्लॉक का एड्रेस कितना है और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं. और ये रिप्रेजेंट करती है ब्लॉक का साइज क्या है एंड ब्लॉक ऑफसेट क्या है. समझ आ रहा है आपको? देखो मैं भी आपको अच्छे से भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एक ब्लॉक का जो साइज है, ठीक है, ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड्स और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 64. तो जो शुरू की जो 2 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करती हैं ब्लॉक का साइज एंड जो लास्ट की 4 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स. देख लीजिए यहाँ पे 4 बिट्स है. सो 2 की पावर 4 वर्ड्स, 2 की पावर 4 इट मीन्स 64 ब्लॉक्स. यहाँ पे कितने 2 बिट्स हैं तो 2 की पावर 2 दैट इज़ इक्वल टू 4. सो इट रिप्रेजेंट द ब्लॉक साइज. अब एड्रेस के अंदर देखिए द वैल्यू ऑफ दीज 2 बिट्स इज़ 1 0. 1 0 मीन्स इट इज़ द ब्लॉक ऑफसेट. ब्लॉक ऑफसेट मीन्स द वर्ड into the block, and block address means the block in which we have to look. Okay, so it tells you this is the block number and इस block के अंदर मुझे ये वर्ड एक्सेस करना है. ठीक है, इधर देखिए अभी आप एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1. सेम इसी के अंदर भी 4 वर्ड्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लॉक ऑफसेट. कि ब्लॉक के अंदर
कौन सा वर्ड आपको एक्सेस करना है, दैट इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफसेट. ब्लॉक ऑफसेट आपको बताएगा कि ब्लॉक के अंदर कौन सा वर्ड एक्सेस करना है. अब लेट्स सपोज द ब्लॉक नंबर इज़ 5 और मुझे इसका थर्ड वर्ड एक्सेस करना है. तो इसका क्या मतलब हो गया, ब्लॉक नंबर क्या है 0 1 0 1 और थर्ड वर्ड एक्सेस करना है. सो दैट विल बी 1 1. तो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द वर्ड, and if we see it in the block wise, so this is the block address and this is the block offset. अब which word it is, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5, इसकी बाइनरी कितनी है 5 में मल्टीप्लाई करेंगे द साइज ऑफ दिस पार्ट, एंड द साइज ऑफ दिस पार्ट इज 4 बिकॉज देर आर 2 बिट्स. सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 बिट्स प्लस द वैल्यू ऑफ this part, the value of this part is 3. So we want to access the 23rd word. So we can see here 20, 21, 22 and 23. So it is okay. So this is 0 0 0 1 1 0 1 1. So we want to access the word 23 in the array. It is clear to you? Same as in the cache line, we have the 4 words 0 0 0 1 1 0 1 1. This is the line address and these are called the line offset. So अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ये वर्ड एक्सेस करना है in the cache line, so it will be like कि 0 0 is the line number and 0 1 0 is the line offset कि कौन सा हमें वर्ड चाहिए. सो अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज़ द ब्लॉक एड्रेस एंड दिस इज़ द लाइन एड्रेस, बट द ऑफसेट लाइन ऑफसेट इज इक्वल टू द वर्ड ब्लॉक ऑफसेट. कैसे, सपोज यू वांट टू मैप दिस वर्ड इनटू द कैश मेमोरी, you want to map this block into the cache memory, then how will you bring it? Now we will decide it कि आप किसी भी लाइन पर इसको मैप कर सकते हैं, इस ब्लॉक को किसी भी लाइन पे मैप कर सकते हैं, बट जो वर्ड है वर्ड तो सेम ही रहेगा ना. कैसे, ये है 0 0 वर्ड 0 1 1 0 1 1. जब आप इस वाले पूरे ब्लॉक को यहाँ से उठाकर इस वाली लाइन पे प्लेस कर देंगे तो जो ऑफसेट है वो सेम रहेगा. तो लाइन ऑफसेट भी सेम रहेगा और वर्ड ऑफसेट भी सेम रहेगा. ठीक है, अभी आई थिंक आपको थोड़ा समझ आया होगा. अगर आपको ये चीज़ थोड़ा समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. CPU विल जनरेट द वर्ड एड्रेस. So let's suppose you want to access the word number 10 in the array of the 0 to 63. So what will be the address of the 10? 1 0 1 0. So this is the word address. आप यहाँ से भी देख सकते हैं वर्ड एड्रेस क्या होगा 10th वर्ड का. दिस इज योर 10th वर्ड. सो दिस इज योर वर्ड नंबर 10 और जिसका एड्रेस क्या है 0 0 1 0 और यहाँ पे ये क्या आएगा 0 0 0 1 1 0. तो एड्रेस क्या हो गया है 0 0 1 0 1 0. अब CPU क्या करता है, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है. तो दिस विल बी द ब्लॉक एड्रेस एंड दिस विल बी द ब्लॉक ऑफसेट. अंडरस्टूड? दिस इज़ द ब्लॉक एड्रेस एंड दिस इज़ द ब्लॉक ऑफसेट. ये वर्ड आपका मैप कहाँ किया जाता है, कैश के अंदर. सो वर्ड ऑफसेट the block offset and the line offset will be the same, and now we will decide कि हमें किस लाइन में ये प्लेस करना है. it may be any line or it depends which technique we are using. so अभी आपको समझ आ गया है कि हमें कैसे करना है. this is the block address, this is the block offset. it tells कि in which block the word is present and it tells which word it is in the block. Understood? Okay.